Hello and good evening, everyone. This is Soumita Tiwari, and you are watching me here on Nation Talks. Today, once again, I am bringing up this topic of justice for Sushant Singh Rajput. Everyone has that feeling that yes, there may be something wrong, and we want CBI investigation. Same thing I'm going to discuss with lawyer and social activist, also criminal psychologist, Miss Anuja Kapoor. She's going to join me and put some light on the entire matter. I welcome her to Nation Talks. Hello, good evening, Yeah, Anuja ji. How are you doing? I'm Welcome to doing Nation Talks. How are you? great. How are you? I'm okay. Thank you, first of all, for taking out time and joining me here to address this very important and also some topic which is of public interest. So, we believe that justice for Sushant Singh Rajput is one thing which everybody wants to know कि आखिर क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कॉमन लोगों तक पहुंच तो पा रही हैं पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो लीगली हम जो नॉर्मल लोग हैं वो उस रूप में समझ नहीं सकते हैं जितना कि आप लोग जो कि इस फील्ड के हैं वो शायद सही रूप में समझ पाएँ और सभी को थोड़ा गाइड कर पाएँ हाउ इट इज़ what are the things, what are the facts which probably are not being told the way they should have been. So if you can put some light to So, that. um, yeah. So, I think a lot of people. First of all, thank you so much, Samita, for putting me on board and talking about with such a important issue, which is very sensitive now, right now. And Yeah, here, you must have seen a lot of people are talking about depression, and right. a lot of people are also talking about reaching out, which we have all forgot. So, what is it that was important? Now, yes, now the last postmortem, the final postmortem says Yeah, that he is under, like, it was a suicide and whatever. But because I'm a criminologist and a psychologist, and so right. everyone knows me as a criminal psychologist, and I've seen the cases around, and I have witnessed some of the scene of crimes, and there are areas where I have given a lot of theories, high-profile theories related to Arushi, Sunda Pushkar, Sridevi, Ram Rahim, Gurmeet, Nebha, and now I also gave it on Sushant. If I take it up on this issue, Yeah, where I will just talking about yeah, where I will be just talking about that how they suicide, where they talk about what people think it is a suicide and what I think. For yes. me, it is a homicide, and I gave it in Men's XP also that this is a homicide, and why I consider this as an homicide and why not suicide. But if it is a suicide, then I will say that it is an abatement to suicide, Yeah, which has related to Sushant to take such a bold step. But the problem then it comes, then if it is an abatement to suicide, how do you leave your personality, which yes. looks so beautiful? You've been doing an exercise. You have been talking like, you have friends a bit, one or two friends, three friends, you have people around. But then we choose to end our life. And that is a That weakness. is, yes, That is yes. cowardness. Even if people are asking you to do you think Kangna Ranaut will do it? No. Of She course not. is a very, very high profile person with great personality and a strong mind. So, what is, if we look into it very, very closely, if I see Sushant, if I body profile him, if I see his body language, what I see him closely, he was a person who used to be smiling a lot. I've also believed that when a person is smiling a lot, there is a lot of pain hidden at the back. I think, Samita, you might understand this. That's a lot of pain when you smile with someone and then you hide your pain also at the back. Now, that is one thing which we are saying that he is smiling a lot, and but he was a little vocal about his mother.
Now, what I will also say that if you and me will go to each other's home, I will not find your psychiatric or a psychotic disorder prescription right there on the table. Got it? Any Yes. kind of a prescription, I will not find it on the table. You will need to really work it out and see where I have kept it. But that was literally open on the table, and it was being seen or was fabricated in such a way that it should be seen in such a way that the whole thing is in a modus operandi. The planning was such that when a prima facie, when it comes in front of it, it should look like a suicide. My first question when it comes to my mind when I was looking at Prashant's suicide and we were talking about it, when a person is vocal about it and he has taken up the social media and he has been talking about it in some of the interviews, and that he was depressed with his mother because she's gone or whatever, why did not he leave a suicide? One thing which is really important is, why did not he leave a suicide note? What is it that he could have written it, that or he could have framed people around? If it's you and me and we're talking about it, it's something like, I would like to put it through in the end when I'm dying, when we talk about dying declaration, right? I would have done that, or I would have said that, you know what, मेरे मरने की किसी को भी जिम्मेवार ठहराना नहीं चाहिए, बिकॉज इसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है और आप जाकर सुसाइड कमिट कर रहे हो, तो आप इतना तो लिखोगे ना, आपका दिमाग फिर प्रिपेयर्ड है, या फिर आपको कोई फोर्स करके चढ़ा रहा है तो आपके पास वो वक्त नहीं है लिखने का। तो क्या पोजीशन है कि आपके पास इतना वक्त नहीं था ये देने का कि मेरे साथ इन लोगों ने इस तरीके का काम किया कि मुझे आज सुसाइड कमिट करना पड़ रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे काम नहीं मिला, मुझे सब जगह से रोक दिया। लिख सकता है ना वो, क्यों नहीं लिखा? तो पहली चीज ये थी कि सुसाइड मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, अगर हम उसकी जो नहीं होना चाहिए, इट वाज अ वेरी बिग क्राइम एंड आई डोंट नो हु सर्कुलेटेड दोस पिक्चर्स, तो दैट वाज अ क्राइम। आप फोटोग्राफ्स कैसे सर्कुलेट, सीन ऑफ क्राइम के फोटोग्राफ्स सर्कुलेट नहीं कर सकते, नवर शॉक हो जाता है, देयर आर मेनी थिंग्स, दिस इज अ क्राइम। और वो जब सामने आती हैं तो आप सुशांत की बॉडी को देखते हैं, आई डू नॉट सी किडनी फेलियर। यूजुअली किडनी फेलियर होता है अगर आपकी डेथ होती है, आप वी ऑल नो दैट, बिकॉज यूरिन निकल जाता है, थिंग्स आर हैपनिंग, बॉडी फंक्शनिंग बंद हो जाती है, तो दैट इज देयर। अगर आप कहीं ना कहीं फांसी लगती है या आपके गले में आपको हैंगिंग से अगर आप मरते हैं, तो आपकी फेशियल स्ट्रक्चर है वो डिसफिगर्ड हो जाता है। डिसफिगर्ड हो जाता है क्योंकि आपका जॉ टूट जाता है और आपकी टंग, क्योंकि अंदर यहाँ से जा नहीं रही है तो टंग कहाँ जाएगी, क्योंकि मुंह खुल जाता है, नीचे की तरफ आता है तो बाहर हो जाता है। आंखों का इश्यूज होता है, सो देयर इज अ डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस। सेकेंडली आता है आपका रिगर मैटर, आपकी बॉडी में जो अकड़पन होता है वो कितने घंटे पहले वो आया, उसके साथ रिगर मैटर जब चालू होता है उससे आप टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं। उसके साथ आप ये भी बता सकते हैं, अगर आदमी लटका हुआ है तो जो सारा खून है वो उसके पैरों में नीचे आ जाना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस, सारा खून नीचे आ जाना चाहिए। पर अगर उसको जमीन पर कहीं रखा हुआ है या वहां से उसको कहीं पर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से वहां कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो खून है उस तरीके से वो अड़ जाएगा, उस तरीके से वो उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आपको कहीं चोट लगी है या कुछ है तो आपकी बॉडी के प्लेसमेंट के हिसाब से खून की प्लेसमेंट, जैसे सुनंदा पुष्कर केस के अंदर ये हुआ था, उसकी बॉडी पर खून के धब्बे आए हुए थे, जिसको ये ढूंढना और ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा वाला, बिकॉज फोरेंसिक पीपल ओनली फिगर इट आउट, किसमें से क्या नाम है फिजिकल जो आपके साथ अगर हाथापाई हुई है तो उसका निशान कौन सा है, और जो आपका रियर मैटर के बाद जो आप में खून रुक जाता है आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी गर्म होती है, जब वो ठंडी होती है तो उस दौरान पर जो खून का प्लेसमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में कहीं पर भी कोई चीज के बारे में पता नहीं दिया, और फॉरेंसिक में भी नहीं बता रहे, वो खुले में भी नहीं बता रहे, सेकंड में भी। थर्डली, क्या पुलिस ने सुसाइड को बोलने पर सुसाइड मान लिया उस टाइम पर? और अभी भी चाहे उन्होंने 25 इंटरव्यू करे हैं, तो क्या उन्होंने सीन रिक्रिएट किया?
आपकी आपके बेड का और आपके पंखे का, आपको भी मालूम है आज के जो पंखे हैं और आज की जो सीलिंग है पुराने जमाने की नहीं है। हाँ, आप लटको और आपके सिर के ऊपर आके गिर जाए। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मुंबई की। राइट टू अब मुंबई मुंबई। में हम लोग बात कर रहे हैं और आपके बिल्डर्स कितना सीमेंट लगाते हैं और कितनी चीजें होती हैं। आपको कैसे पता कि आप पंखा, इसका मतलब या तो सुशांत ने पहले कई बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी होगी। निर्भया यस। केस के अंदर जी रोप्स बाहर से आ रहे थे, उनकी बॉडी वेट के हिसाब से रोप आया था। तो सुशांत इतना हट्टा कट्टा था, तो उसके उसका उसको कैसे पता था कि ये वाला चुन्नी जो उसका बॉडी वेट उठा लेगी। देखिए, यस। अगर आप बेहोश हो जाए आज, तो आप बेहोश हो जाए आज, तो आपको कोई उठाकर लेकर नहीं जा सकता। जी आपका हाँ। जो बॉडी है वो लेथार्जिक हो जाती है, वो पूरा अपना अपना वेट छोड़ देती है। एक आपका वेट, ऊपर से वेट आप कैसे उठा के लेकर जाएंगे। और ऊपर से जो बाइसेप्स बॉडी बिल्डर है, जो एक्सरसाइज करता है, उसका वेट आप कैसे उठा रहे हैं। तो जी हाँ। हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि वो जो लटक रहा है उसका वेट, वो बॉडी, वो एक दुपट्टा पतला सा, लड़की 50 या 50 या 55 की वेट की ऊपर चढ़ रही थी। ये ये भी एक बहुत बड़ा इशू था जो मुझे समझ में नहीं आया। जी हाँ। जी हाँ। एंड देन इट वाज आल्सो बीन टॉक्ड अबाउट, क्या इसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस थी, इसके मरने के बाद किसको डायरेक्ट इसका फायदा होना था। वहां पर जब इसके घर में दोस्त बैठे हैं, और दोस्त बैठे हैं घर में, कैसे कोई आदमी उठ के सीधा कमरे में चला जाता है और जाके अपना डेथ बेड पे खड़ा हो जाता है, देन ही टॉक्स अबाउट। और नीचे आप में बेड और उसके में फर्क कितना है, आप उसकी वेरी हाइट देखो, आप उसको कैसे, वो कैसे, मतलब वो अड़ा कैसे, अंटिल उसके पीछे कोई सर के ऊपर कोई खड़ा हो, या डिड यू रिक्रिएट द सीन और नॉट। जी हाँ। जी दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। ये देखना जरूरी है। उसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि बहुत लोगों को पैसा देता था, नया नया पैसा भी बहुत सारा आया था, तो क्या इसने किसी को लोन क्यों नहीं दिया था। क्या इसी के दोस्तों में किसी ने, क्योंकि दोस्त और नौकर थे, तो क्या दोनों तीनों इन्वॉल्व थे, क्योंकि क्या पैसा जो है पैसे का कारण ही, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और इसके क्या नाम है, पेंट हाउस को भी मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर लिया हुआ है। तो और ऊपर से लॉकडाउन का पीरियड था, पैसा लोगों के पास आ नहीं रहा था, तो क्या उस चक्कर के अंदर मतलब डिप्रेशन का रोल दिखाते हुए, माँ को दिखाते हुए, और सारे ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट सामने दिखाते हुए क्या उसका मर्डर करा। तो हु इज द पर्सन जिसको डायरेक्ट इसके अंदर उसको लाइफ इंश्योरेंस से मिल रहा है, उसे क्या नाम है, किसी ने उससे पैसे मांगे हैं, क्योंकि वो 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ कितना लाखों में देने वाला लड़का था। उसने क्या करा था, उसने अभी रिसेंटली दिया था किसी को, तो पैसे देने वाला लड़का। तो आप कैसे मान लेंगे उसको कि वो डिप्रेशन, डिप्रेशन ना मजाक बन गया है। डिप्रेशन किसी को पता नहीं है, क्योंकि क्या हो गया इस वक्त सब डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, जो सब कुछ। तो क्या है कि अगर आपका कोई एक्सपर्टाइज बात करे ना, और आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली उसके अंडर हो रही है, अगर ट्रीटमेंट हो रही है, तो बहुत चीजें काउंटर हो जाती हैं। और अगर वो वाकई में ट्रीटमेंट ले रहा था, तो उसके जो साइकाइट्रिक हेल्प था, उसने बोला कि बाइपोलर डिसऑर्डर में, और मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जो सुनंदा पुष्कर को भी कह दिया था, क्योंकि उसको भी मार दिया गया था। सुनंदा पुष्कर को भी कहा गया कि बाइपोलर यो हनी सिंह भी था, वो मर गया। आपकी दीपिका पादुकोण वो मर गई है। कितने लोग हैं, सबसे बड़ी बात, कितने रेप विक्टिम्स ने सुसाइड कमिट करी आप बताओ, कितने ऐसे अटैक विक्टिम्स ने सुसाइड कमिट करी आप बताओ। बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इनको नहीं है। घर की जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है लड़कियों के साथ, मैरिटल रेप होता है, उनको मारा पीटा जाता है, कितनी लड़कियों ने करा डोमेस्टिक वायलेंस में, अंटिल अनलेस उनको जला दिया जाए डाउरी एक्ट के अंदर 498 में। बातें आती है सामने। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें मेरे सामने आई हैं, तो इसीलिए मैं इसको नहीं कह सकती। अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं, सपोज अगर उसने सुसाइड कमिट करा है, तो सुसाइड कमिट करा है, तो सुसाइड जो कमिट हुआ है वो फिर यहाँ पर अबेटमेंट आई, अबेटमेंट क्योंकि यहाँ पर उसे प्रोवोक किया गया, उसे इतने हद तक ले जाया गया कि उसने अपने आप को यही समझा कि अब मेरी जिंदगी खत्म है, मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, होपलेसनेस। और उसको कहीं ना कहीं ये फील होता था कि आज के बाद से मेरी जिंदगी में कोई चीज नयापन नहीं आएगा। जो एक घर में कुत्ते को रखता हो ना, जो डॉग्स के साथ बेजुबान के साथ करता हो, वो सुसाइड कमिट नहीं करते, क्योंकि उनका स्ट्रेस बस्टर ऑलरेडी है, वहां पे प्रेजेंट होता है।
और वो कुछ देर पहले सुनने में ये भी था कि वो नीचे गया था और उसने सबके साथ बात करी थी, उसने कहा था आज का दिन बड़ा गर्म है, कैसे है, और ऊपर जाकर सुसाइड कर रहा है और उसके घर में गाने चल रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि पुलिस इसको कितना इन्वेस्टिगेट कर रही है और कितना क्यों नहीं कर रही है। अगेन बहुत चीजें हैं, बहुत रसूखदार लोग हैं, बहुत जी बड़े हाँ, लोग हैं, छोटी, अरे सुनंदा पुष्कर जैसी औरत मर गई, आरुषि केस का कुछ नहीं उखाड़ा किसी ने, जी हाँ, कोई क्या भी करेगा। और तो अब हम इसकी आड़ में अगर हम डिप्रेशन की बात करना चाहते हैं, तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज है। डिप्रेशन सिर्फ एक वर्ड या स्पेलिंग नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन अल्फाबेट। डिप्रेशन एक जंग है जो एक आदमी अपने आप से लड़ता है। शुरुआत इसकी स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, उसके बाद आखिर में जाकर आप सुसाइड कर सकते हैं। डिप्रेशन के दौरान आप कहीं ना कहीं आपको हेलुसिनेशन भी चालू हो जाता है, आपको ये लगने लगता है कि क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर चालू होता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया, माइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन, डिप्रेशन का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम, कोई माइल्ड में होता है, कोई मिड में होता है, हाँ, और कोविड है, सभी में एक स्ट्रेंथ है इस वक्त, सब मर तो नहीं गए, रिकवर भी तो है ना। तो जी जहां अगर आपको डिप्रेशन है और अगर आप उसको समझते हैं आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, और आप उसके अंदर अगर आप में जीने की इच्छा नहीं होगी, तो यार छोटी सी बीमारी भी मार देगी आप। तो स्ट्रेस, और मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस में एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, सुसाइड में क्या फर्क है, जो आपके ब्लू व्हेल ऐप के बच्चों ने भी डाउनलोड किया और उसमें से जी वही लोग मरे जो कहीं ना कहीं मरना चाहते थे और वो अपनी जिंदगी से बहुत हताश थे। बच्चों में तो दिमाग नहीं था, और कई बच्चे ऐसे हैं, कई जगह कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप करने के बाद ऑन वेब कैंप पे ही करते हैं। ये लोग जी पॉपुलर होने के लिए भी करते हैं, जिसको कहते हैं जिज्ञासा, एक जिज्ञासा होती है आफ्टर लाइफ क्या है। ये लोग इसलिए भी सुइसाइड कमिट करते हैं कि कईयों को ये भी होता है कि वो पॉपुलर हो जाएंगे रातों रात, हम एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाएंगे। कुछ इसलिए भी सुइसाइड कमिट कर लेते हैं कि हो सकता है मैं मरूं ही नहीं और मैं, मेरे को बचा लिया जाए, सामने बाहर वाला आके कोई मुझे बचा लेगा, तो मैं इसके बाद देखूंगा मुझे कितने लोगों ने किया। ये बात आती है तो बुराड़ी का केस कोई नहीं भूले, और उसमें 11 लोगों ने सुइसाइड कमिट करी थी, और वो जो मैंने फिर कहा था, और इसके अंदर भी मेरी थ्योरी गई थी कि सुइसाइड केस नहीं था वो, उसमें एक बंदे की साइकोटिक हेल्प से पूरे परिवार का मर्डर किया गया था। इसके अंदर ओकल्ट था, इसके अंदर तांत्रिक इन्वॉल्व थे, इसके अंदर चीजें थी, अगेन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व थी जो सामने नहीं आई, और क्योंकि उसके अंदर भी जो इवेंट्स थे वो मैच नहीं कर सकते। स्ट्रेस, आप काम करते हैं, बच्चे हैं, आप भी घर में काम कर रहे हैं इस वक्त, स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा से छोटा सा इवेंट होता है, बहुत छोटा इवेंट। जैसे कि आपको कल पेपर है, घर में खाना खाने बनाने के लिए आपके फ्रेंड्स आने वाले, आपको घर में खाना बनाना है, स्ट्रेस बहुत छोटा इवेंट है। एक बॉस है, उसने बोला काम खत्म करके दे दो, टीचर्स हैं घर में काम कर रही हैं, करिए, छोटा इवेंट, मतलब आपके ऊपर प्रेशर है करने का, स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि आप पॉजिटिव स्ट्रेस कॉम्पिटिटिव होता है एंड इट इज गुड। और उसके बाद अगर आप स्ट्रेस को आपका खत्म नहीं होता है और आप उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपके जी अंदर स्ट्रेस के साथ क्या होता है, एंग्जाइटी चालू हो जाती है। एंग्जाइटी के अंदर क्या होता है, आपका पेल्पिटेशन बहुत हाई हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मैं, हाय, आर यू देयर? yes, yes, I'm very much here. Yeah, Soumya, are you there? I Yeah, I yeah, I'm was there. I'm doing you. Yes, I yes. I just it just live it No, went off. that's like, yeah, I know. Yeah, because I was looking at you and talking. So No, 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 okay. yeah. तो व्हाट हैपेंस इज कि जो वो स्ट्रेस बड़े छोटे टाइम का होता है, बेबी स्ट्रेस होता है, बट गुड भी होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है, अच्छा होता है, दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर यू समटाइम। पर अगर आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और लंबा हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि आपका एंजाइटी अटैक जो है वो आ जाता है। एंजाइटी के अंदर आपके हाथों में पसीना आने लग जाता है, आपको ये लगने लगता है कि पता नहीं मैं परफॉर्मेंस जो दे पा रही हूँ, और कईयों को स्टेज फ्राइट होता है, कईयों को कैमरा फ्राइट होता है, कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वह बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वहां पर एंजाइटी कहीं ना कहीं आ जाती है सामने,
और एंजाइटी के साथ आपको ये भी पता चलता है कि जब आप एंजाइटी के अंदर तो आपको पैनिक भी हो रहा है। पैनिक मतलब कि जिसके अंदर आप चीखना, चिल्लाना, वायलेंट, एंजाइटी इज देयर बट देन पैनिक इज वायलेंस। चीजें तोड़ना, बात करना, चीखना, जोर से बोलना, लड़ाई करना। बहुत लोगों को आप पैनिक अटैक हो जाता है आपको कब? आप रोड रेज में होते हैं, आपको पैनिक अटैक हो जाता है। यूजुअली हॉट ब्लडेड पीपल जो है वो पैनिक अटैक्स में आ जाते हैं। मुझे टाइम पर पहुंचना है, इतनी भीड़ है, और मार के पीट के गालियां देते हुए रास्ते में 10 दिस इज अ पैनिक अटैक। सीढ़ियों पर चढ़नी है, मैं पहुंचने पर टाइम है, दिस इज अ पैनिक अटैक। यूजुअली आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। उसमें आप देखिए आपका थायराइड कैसा है, क्या आपके विटामिन पूरे हैं, और आपके विटामिन के साथ क्या आपको आपका जो बॉडी हॉर्मोन्स है वो ठीक बन रहे हैं। ये सबसे पहले चेक करवाना जरूरी है बिफोर यू जंप इनटू सम अदर कंक्लूजन। तो जब आप बायोलॉजिकली टेस्ट लेते हैं तो उसके अंदर आप पहले अपने विटामिन, अपना थायराइड, अपनी बाकी चीजें उनको चेक करवाइए, एग्जीक्यूटिव टेस्ट करवाइए। वो होना हर 5 या 6 महीने में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप भी धीरे धीरे बूढ़े ही हो रहे हैं, हम अपनी बॉडी से डिजेनरेट कर रहे हैं, तो उनका भी साइड इफेक्ट आ रहा होता है। साथ ही साथ कईयों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कईयों के स्टंट डले होते हैं, तो हर चीज उससे रिलेटेड नहीं होती। अपार्ट देन व्हेन ये सब चीजें इज बीन टेकन केयर ऑफ, पर लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग एल्स, पैनिक अटैक से आगे से आ रही है और ये क्योर नहीं हो रहा है, तो देन व्हेन ये चीज बहुत लंबा पीरियड से चलता है, लंबा पीरियड मैं बात कर रही हूँ 1 साल, मैं बात कर रही हूँ 2 साल, अगर इतना लंबा पीरियड आपके पास चल रहा है और आपका कहीं पर भी सिम्टम्स ऐसे आते हैं, और सिम्टम्स पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके साथ पहले कोई वक्त गुजारे तो आपका सिम्टम देख पाएगा, क्योंकि नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या बात कर रहा है। तो किसी के पास बैठकर ही आप किसी का सिम्टम देख सकते हैं। अगर आप किसी के पास अपना वक्त ही नहीं दिया तो ना तो आप बात कर सकते हैं, ना आप किसी से आप खुल भी नहीं पाएंगे, रीच आउट किसको करेंगे, कोई है ही नहीं, दीवारें हैं तो किसको रीच आउट करेंगे, खुल भी नहीं पाता। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी भी आपके लिए डिप्रेशन का हिस्सा बन जाती है, कि आप किस पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप अगर इसको और हम पास से देखते हैं तो सिम्टम्स जो इसके अंदर आने शुरू होते हैं वो है कि आपको सबसे पहला होता है कि कोई जरा सा भी कुछ चूं सा बोले तो आप उठ के रोना शुरू करते हैं। दैट इज द इमीडिएट कॉज। क्या क्या ट्रिगर कर रहा है, और हर छोटी चीज ट्रिगर कर रही है पहले, और अचानक से आप अगर बॉर्डर लाइन की जहां पे बात करते हो, अचानक से आप हंसने लग जाते हो। आप अभी रो रहे थे और एकदम से आप हंसने लग गए, वो बहुत सिवियर होता है। मैनिक और डिप्रेसिव बहुत सिवियर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज में आता है, बहुत सिवियर। और इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं असाइलम में डालते हैं, वो पागलों की तरह बिहेव करते हैं, दे आर एक्चुअली मैड पीपल व्हेन दिस थिंग्स हैपन। यहाँ पर दीपिका पादुकोण को बॉर्डर लाइन जो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया था, उसके अंदर उसको डिप्रेशन का बताया था, मैनिक में नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कितना खाना खाता है, किचन में खड़े हैं, बच्चे के साथ है, पता ही नहीं वो क्या चाय बोल रही है, बच्चा टब में बैठा तो वहीं डूब गया, पता ही नहीं वो वहीं पर ही बैठा है, बच्चा आपको आवाज लगा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं, स्कूल में कॉलेज में कुछ बोल रहा है, पीछे हॉर्न मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सो यू आर आउट ऑफ योर माइंड। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। देन व्हाट हैपेंस इज कि आपने जब आप किसी से कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, बात करते हुए अपने डायलॉग ही भूल गए, आप अपनी बात ही भूल गए, आप किससे क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद आप जब उसके दौरान आपको अगर नींद आपको लगता है आपको आ रही है, बट आपको नींद नहीं आ रही, आप उल्लू की तरह रात भर जाग रहे हैं, आपको इंसोम्निया हो रहा है साथ में, और या आप इतना सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं, पंखे में गरम चादर ओढ़कर आप सो रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं कि एसी चल रहा है, बाहर मौसम क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यू नॉट बॉदर्ड, और आप बस चादर डाल के ओढ़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि टॉम एंड जेरी की तरह टॉम रगड़ के उतर रहा है, यू वांट टू फील लाइक दैट, आप ऐसे उतर रहे हैं, पानी के लिए भी किसी को बुला रहे हैं, पूरी बॉडी आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गई है, डिसएसोसिएट हो गई है। और उसके साथ आप जब बात करते करते आप किसी को भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उससे जरा सा भी कोई बात आपको कह रहा है तो आप उसको बहुत गंदा बोल रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मतलब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं,
मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है और मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं रह गई है, क्या फायदा है मुझे यहाँ पे रहकर, मैं बोझ हो गई हूँ इस घर में, मुझे किसी को जरूरत नहीं है, यू नो, यू lot of PTSD, post traumatic stress disorder, is depression. Vietnam War people, that's depression. The people who are raped, that's depression. The people who are having an acid attack, that's depression. The people who have or are on the border security force, police, they are the ones who sometimes, you know, because they keep looking into. I can have a depression because I keep looking into crime. When I keep looking into crime, I keep on seeing things around. I get compassion fatigue because I'm not able to talk to someone with. They will all say that Anuja, you're a psychologist. Who will treat me? It's a very difficult process. Who will treat you? ये थोड़ा कि मैं भगवान हूँ और मैं एकदम से अपने आप को ठीक कर लूंगी. So who will treat me? And thank you. So who will treat me? Now that's just the problem. लोग कहते हैं कि जितने लोग अरे सुशांत तो बहुत सक्सेसफुल था और उसको क्या डिप्रेशन होना है. आई एम सॉरी, जितना आदमी सक्सेसफुल होता है ना उतना डिप्रेशन होता है और आपको ये चीज प्रूवन है क्योंकि वो सक्सेस के रास्ते में सब कुछ छोड़ देता है और क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके पास सब कुछ है तो उसके पास उनको ये भी लगता है कि यार इतनी प्रोफाइल है, इतना इसके पास होगा, इतने इसके दोस्त होंगे, हमारी जरूरत नहीं है, यहीं पर अड़ जाती है. जब आप किसी को अज्यूम कर लेते हो कि इसके पास सब कुछ है पर एक्चुअली उसके पास कुछ नहीं, सबसे ज्यादा अकेला होता है और वो वहीं पर अकेला रह जाता है. तो अज्यूम मत करो, आप बैठो और बात करो, उसकी बॉडी को समझो, वो किस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और वो क्या कहना चाह रहा है. अगर आप ये मान भी लेते हो और उसको माफ कर देते हो, अगर उसने एक से दो बात आपको कह भी दी तो यही सोच के, अगर आप मन में भी यही सोच के माफ कर देते हो ये कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, आप माफ कर दीजिए उनको ये बोलने के बाद कि उसको मन में मत लगाइए अगर कोई आपको बात कह देता है, बिकॉज दैट इज हाउ थिंग्स आर कमिंग अप. क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन यू नेवर, द पर्सन नेवर नोज कि कितना गंदा बोल रहा है और आप जब इसको रिकॉर्ड करके नहीं सुनाओगे कि वो इतना डिप्रेस्ड बातें कर रहा है, मरने की बात कर रहा है और सबसे ज्यादा रोल प्ले करना है फैमिली को और सबसे ज्यादा उनके दोस्तों को, उनकी उनके उनके पार्टनर्स को. हम किसी को मरने देना तो नहीं छोड़ सकते ना, फिर छोड़कर हम चले जाएं. तो इनका ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स के साथ किसी इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता. कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रीट नहीं होती? यहाँ कैंसर तक विल पावर से ट्रीट होता है और लोग जिन लोगों को बोल देते हैं कि आप 2 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे, 6 महीने तक नहीं चलेंगे, वहां पर लोगों की जब स्ट्रॉन्ग वैल्यू आती है तो वहां पे वो खड़े हो जाते हैं. I am a patient of a tumor and in 2007 I got tumor और मुझे पिट्यूटरी एडिनोमा है और अगर मैं सामने खड़ी हो सकती हूँ और अपने आप से हर रोज लड़ सकती हूँ, आप लोगों के सामने खड़ी होती हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं और अगर मैं आप लोगों के सामने एक, आप अगर मुझे रोल मॉडल मानते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं मैं हर रोज अपने आप से कितना जूझती हूँ. 16 गोलियां हर रोज लेती हूँ मैं अपने आप को खड़ा करने और उसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने वैसी ही दिखती हूँ जैसे मुझे दिखना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिजिकली आदमी दिख रहा है वो मेंटली भी वैसे ही. तो अपना अजम्पशन मत लगाइए, वो अपने पास रखना बहुत जरूरी है. आप अपना अजम्पशन अपने पास रखें क्योंकि कभी कभार आदमी बहुत बुरी जंग लड़ रहा होता है अपने आप से और उस वक्त तक जब कोई साथ देता है उसका या उसको समझने की कोशिश करता है तो कई बार लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो धक्का मार देते हैं, वो नहीं लेते. कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं लेते हैं हेल्प, या बहुत खुददार होते हैं तब नहीं हेल्प लेते हैं. उन्हें लगता है उनकी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी, किससे हेल्प मांगे. सुशांत अगर हेल्प मांगता तो क्या उसकी वैसी उसकी पिक्चर बेचारी कोई नहीं देख रहा था तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता. लोगों को ये लगता है यार अगर मैं आज जाके अपने अपने किसी से पार्टनर से भी या हम अपने दोस्त से भी किसी से बात बोलेंगे तो, क्योंकि सब लोग दुखी हैं, एक्चुअली देखा जाए तो सभी दुखी हैं, सबके घर में कोई ना कोई कलेश है, किसी के घर की खिड़की नहीं खुली है तो सभी के घर में कलेश चल रहा है. तो अगर कोई बंदा किसी के घर के कलेश की खिड़की खोल भी लेता है तो कहता है मेरे खुद ही इतना दुखी हुआ है, मैं तेरे को क्या सुनूं. यहीं पर ही प्रॉब्लम. तो यहाँ पर हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम भी डॉक्टर्स हैं, इवन आई एम अ डॉक्टर, अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं अपने घर के कलेशों को आपके सामने लेकर आऊंगी और आपकी बात नहीं सुनूंगी तो फिर हम कैसे हील करेंगे एक दूसरे.
नाउ इज द टाइम कि हमें हीलिंग पावर चाहिए। अगर इस तरीके से होगा तो हम कैसे सुसाइड करते हुए देखेंगे लोगों को? उसका ओनस हमारे ऊपर आता है, ये कैसे जी नहीं है कि उसका ओनस हमारे ऊपर नहीं आता? उसका आता है। हम लोग अलाउ करते हैं लोगों को सुसाइड कमिट करने के लिए। उनकी वीक पर्सनालिटी है, आई नो दैट, पर वो वीक पर्सनालिटी कैसे हुई और क्यों उनकी वीक पर्सनालिटी शुरुआत से रही? माँ बाप ने बचपन से उन बच्चों को पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या जी या या probably there तो is some आई जस्ट थॉट कि मेरा सिग्नल बंद हो गया। तो जी हाँ it was little low. तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। मतलब बात करने से बात हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के टाइम पे सब डॉक्टर्स हैं, सब डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, सब एक्टर्स डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, करो आप बात करो, पर सर्टिफिकेट कर दो, ठीक है? क्योंकि हर एक आदमी डिप्रेस है। कभी कभार किसी को सिर्फ प्यार ही चाहिए, और कभी कभार किसी को सिर्फ इतना ही चाहिए, हाथ पकड़ के कुछ सुनने वाला चाहिए। वो इसीलिए कभी कभार जब हम एनिमल्स को घर में रखते हैं तो उनको बिठाकर भी बात करते हैं। तो जिनके घरों में एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत के यहाँ पर बहुत इतना जी था। ये फाउल प्ले है सुशांत का टोटली। और अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगा तो मुझे जहां तक लगता है कि इसकी बहुत कड़ियां खुलेंगी, और किसकी तरफ से ऑर्डर आए हैं और क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट yeah, and also when you were saying these things, and lot of new things have also come up like in my mind also, and probably जो viewers हैं उनको भी लगा होगा काफ़ी सारी बातें जो आपने बोली हैं उसमें बहुत सारे points हैं जो अभी तक हम लोगों की नज़र में तो इतने नहीं आ पाए थे क्योंकि you can see it from a better angle being in this particular field. सो इसमें अगर हम ये भी माने कि उन्होंने सुसाइड भी किया था सपोजेटली, आई डोंट नो, बिकॉज अगर ये मान भी लिया जाता है तो वी वुड लाइक टू नो दैट लाइक what exactly is the sentence like for abatement of suicide when somebody force someone to do that act, you know when you call it like that कि ये एक forced suicide था probably. What do फोर्स you सुसाइड होता है यार। फोर्स सुसाइड क्या होता है? फोर्स सुसाइड कुछ नहीं होता, वो दिखाया जाता है। फोर्स सुसाइड कभी नहीं होता। think nothing like that आप so that प्रेजेंट होते हैं, लोग कमरे में प्रेजेंट होते हैं जब वो कर रहा होता है, जी हाँ. एक्ट कमिट कर रहा था। फोर्स As in सुसाइड mentally, कभी I'm saying probably somebody who might be behind that. So in नहीं। हाँ, that उनको ये aspect also. Yeah. प्रेजेंट होते हैं लोग कमरे में, और उनको कहते हैं इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एन एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन Okay. का क्या मतलब होता है? एक्सटॉर्शन का मतलब होता है मैं यही बैठा हूँ, मैं आपके सिर पे गोली बंदूक रख देती हूँ, Hmm. मैं आपसे चीज छीनूंगी नहीं, जी हाँ. आप अपनी कंसेंट से मुझे। Hmm. दिस इज एक्सटॉर्शन। This is extortion. जहां Okay. कंसेंट ले ली जाए पर वहां बिल नहीं हो, इसीलिए रेप के अंदर कंसेंट छीन ली जाती है, बिल नहीं होती। कंसेंशुअल के अंदर बिल होती Hmm. है, कंसेंट साथ। तो जी ये हाँ. बहुत बड़े मुद्दे हैं। सुसाइड के जी. दौरान आप अगर, मैंने आपको पहले ही, इससे पहले भी बताया था कि सुसाइड कई लोग देखने के लिए भी करते हैं आफ्टर लाइफ। कई लोग सुसाइड इसलिए भी करते हैं कि मैं मर के तो यार वापिस आ जाऊंगा, घर में बैठे ना अभी आके मुझे देख लेंगे। सुसाइड इसलिए भी करते हैं ये बताने के लिए कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करता हूँ, और देख मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा ये बताने के लिए ब्लैकमेलिंग भी होती है। इमोशनली अनस्टेबल पीपल ही कब सुसाइड कमिट करते हैं, या जिन लोग, क्योंकि ये जो पर्सनालिटीज होती है इमोशनली अनस्टेबल, ये यहाँ पर एक 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 पैरासाइट की तरह एक बॉडी को चिपक जाती हैं, उनका गला दबा देती हैं। देयर आर टाइम्स कि वो उनको बार बार धमकी भी देते हैं कि देखा अब तुमने ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी, मैं दुनिया को बता दूंगी, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी। तो इमोशनली ब्लैकमेल करके भी सुसाइड कमिट करना, या दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश करना कि देखा तुम मेरे जिंदा रहते अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो मेरे मरने के बाद भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे को मेरी एहसास दिलाना कि देखो तुम्हारी वजह से मैं मर गई, मैं जिंदा रहते तुमने मुझे, मतलब, या समटाइम्स नहीं सुसाइड हुआ. वहां पे कमिट होता है कि जहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है। बेटमेंट में कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहाँ पर किसी के साथ रेप कमिट होना जा रहा हो, तो वहां पे औरतें नीचे गिर जाती हैं, सुसाइड कमिट कर लेती हैं। ऐसा भी टाइम आया है कि जहां पर उनको ब्लैकमेल करा जा रहा हो, उनकी फोटोज हो, तो वहां पर लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए सुसाइड कमिट कर लेती हैं। वहां पर जी. वो अलग सीन है, हर सुसाइड अलग है। जी हाँ, बिल्कुल सही कश्मीर में बात. अगर रेप होगा लड़की के साथ बाय XYZ, वी ऑल नो हाउ, तो हम्म. वहां पर लड़कियां मास सुसाइड करेंगी।
तो देयर आर टाइम जब एक मास सुसाइड भी होती है, मास सुसाइड के अंदर उन्हीं जगहों पर होगी जब सब एक जैसे रेप विक्टिम्स हैं। उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अपना दिमाग चल जाता है, जहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, वो सामने आती हैं और वो सुसाइड लास्ट मिनट में अगर आपको कोई रोक ले, लास्ट मिनट या लास्ट मिनट में आपको कोई प्रोवोक कर दे, और तो आप Yeah, या एक्ट आप कर लोगे या वो एक्ट आप नहीं। very correct, very correct. This is perfectly you said. And if we look at it from the point of view, जैसे जो public demand कर रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह से, because Mumbai police is not, responding, they are not working on this thing. We don't know there may be something कि कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, हम लोग उस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट एज अ पब्लिक आई एम आस्किंग कि अगर इसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग, जैसे अभी सुमन जी ने भी आज या yesterday I think he started justice for सुशांत सिंह फोरम, जो बिहार से उन्होंने वो वहाँ से बिलोंग करते, तो उन्होंने कुछ शुरुआत की है सोशल मीडिया के थ्रू। बट इससे आपको लगता है कि लाइक पब्लिक डज इट थ्रू सोशल मीडिया और प्रेशर क्रिएट होता है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने में इससे कुछ सपोर्ट मिलेगा उस केस में? देखिए, अगर आप मीडिया ट्रायल की बात करते हैं तो हम जसिका लाल केस आपके सामने, जी हाँ जी। जसिका लाल केस आप ही लोगों ने उठाया है। जी हाँ प्रियदर्शनी बिल्कुल। बच्चू केस है। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं, दिल्ली रॉयट्स में आते हैं, बहुत केसेस हैं। सुनंदा पुष्कर का केस दोबारा से खोला जा रहा था, जी तो हाँ जी। जबकि उनके ऊपर तो पॉलिटिकल है, वो तो अब उनके ऊपर क्या ही चीजें हैं, सही। बहुत चीजें। मैं आपको हमेशा से मैं हर 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 चैनल पर मैं यूजुअली एक बात कहती हूँ, ये ध्यान रखिए, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं या लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी चिंतन करने की जरूरत है। आप क्या मांग रहे हैं? लॉ मांग जी रहे हैं, तो जस्टिस नहीं, तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली एनकाउंटर भी। स्पेसिफिकली अगर हम सुशांत जी की बात करें, उसमें आपको कितना चांसेस लगता है कि अगर पब्लिकली हम लोग जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं ओपन फ्रंट पर, सोशल मीडिया के थ्रू, अदरवाइज प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, और बिहार में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, मुंबई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि give it to CBI if you cannot handle it. Lot of things are going on, but will that be, as per you being in that field, what would be your suggestion, like, to general public? ये ओपन एंड शट केस नहीं है, निर्भया ओपन एंड शट केस था, कितने साल हो गए? 7 साल बाद में। तो जहां ओपन एंड शट केस होता है ना, वहां और भी ज्यादा इश्यूज दिखाते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, तो जहां पर ओपन एंड शट केस में भी 7 साल लग गए, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का लाता है। और जितना सीबीआई को देने में टाइम लगाएंगे, उतना जी फॉरेंसिक्स की जो डीएनए पड़ा है वो काम हो जाएगा। हमारे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर गर्मी भी है, हमारे यहाँ पर चीजें भी हैं, हमारी जो लैब्स हैं वो भी हमें समझनी है, हमारा फोरेंसिक में हमारा दिमाग कितना चलता है वो भी हमें समझना है। हमारे फोरेंसिक्स के अंदर जो टीम है, आधी ज्यादा चीजें हम सिंगापुर है वहां पे जगहों पे भी भेजते हैं समझने के लिए, पता लगाने के लिए। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, अगर सुशांत के अंदर अगर 10 चीजें करवानी है तो उसको जल्द से जल्द अगर करना है तो कर करा के नक्की किया जाना चाहिए। इसमें जी सीबीआई की अगर मांग हो रही है और पब्लिक प्रेशर है, तो इसके जवाब, क्योंकि इवेंट्स नहीं मिल रहे, तो इसके जवाब आने चाहिए, और इसके जवाब खुले तौर पर आने चाहिए। जैसे श्रीदेवी का केस कोई भी ये कहकर नहीं कह सकता था कि डाउन हुई और मर गई, तो उसी जी तरीके से सब पता है कि श्रीदेवी के अंदर भी वहां पर डेथ हुई है। किसने करी है बिल्कुल। वो सब जानते हैं, और इनके पीछे भी क्या रहा है, उनका उनका 240 करोड़ धर्म यूएई में पड़ा हुआ था, उसमें यही था कि अगर वो वहां मरेंगी आकर दुबई में, तो ही उनकी वो चीज को निकाला जाएगा, तो वहीं मर गई है। तो कितनी चीजें आपको अंदर से पता है, कितनी चीजें बाहर है, देखिए वो तो सीबीआई के बाद ही पता चलता है। तो आई थिंक सीबीआई भी तो अलग नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे में सीबीआई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आप एसआईटी जी भी क्रिएट करें तो वो भी इन्हीं के ही लोग हैं, तो आदमी कहाँ जाए, मतलब सही बात है, ये बहुत ही आई डोंट नो। उलझी हुई सी। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और वो बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर कोई क्लीन हार्टेडली करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वाली गड़बड़ है जो कि हो रही है सिस्टम से लगा करके, तो हर एंगल में हम लोग इसको देखें, बिकॉज पुलिस देखिए इज ऑल्सो बहुत नॉट हद सपोर्टिंग। तक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आरुषि केस में यही हुआ, नोएडा की पुलिस में अगले दिन ही फुटफॉल दे दी जानबूझ के। आप इतनी फुटफॉल, बिल्कुल अब आपको हमेशा से आपको एरिया को कॉर्नर्ड करना चाहिए, आपको उसको कंटामिनेट नहीं सही। करना है, आपने कैसे करवा दिया। और उसके बाद खैर अब तो वो केस में उसका बहुत प्रोफाइल दिया था मैंने उसके अंदर भी।
पर ओके। आई थिंक सुशांत को अगर सच में हम जस्टिस की बात कर रहे हैं तो जस्टिस क्या जी। है जो हमारा मन चाह रहा है सुनना, और वो क्योंकि हमें जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए हम हर चीज को खारिज कर रहे हैं। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं हुई है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी वो चीज है, मैं तो इतनी चीजें देखती आई हूँ, पुलिस के साथ बहुत क्लोजली जी। काम भी हुआ है। जी। तो यार मैं पूछ रही हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। और मुझे जहां तक लगता है अगर इसको बहुत तरीके से अंदर तक देखा जाए तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए मुझे वो एंगल दिख नहीं रहा है। उसमें यही है कि क्योंकि अगर आप उनकी गर्दन पे भी देखें तो निशान जो है बिल्कुल सीधा है, और जबकि अगर जी। आप रोप रखते हैं तो वो यहाँ से यहाँ वो होता है। तो हाँ, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल सीधा काट वो करा हुआ है। और तो उसको दो चार लोगों ने पकड़ के नीचे जमीन पर मारा है, उसके बाद टांगने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कौन किसने फोटोएं खींची, कोई फोटोएं नहीं थी, कोई कोई पिक्चर्स फोटो नहीं। नहीं हाँ, तो वो किसने खींची, वो लेटा हुआ ही बस नजर आ रहा है, और उसी लेटे के साथ उसी तरीके से ही उसको मारा हुआ है, वो जो पोजीशन है वो लेटा हुआ ही है। और अगर वो लेटे हुए की पोजीशन पे इसको मारा है तो वो जो सारा खून है वो नीचे बैक की तरफ आना चाहिए, वो पैरों में नहीं हो, तो वो नीचे की तरफ कौन करेगा, मैं तो जाके कर नहीं सकती। तो ऑफ वो नीचे कोर्स। वो वहीं पर ही होना चाहिए। दूसरा उसमें देखना चाहिए उसके फिजिकल इंजरी कहाँ कहाँ पे देखते हैं, यहाँ से दबाया है, यहाँ दबाया है, या क्या है, उसका फिजिकल इंजरी भी है। उसकी एक आंख पे कुछ, हाँ, समझ रही वो ऐसे नहीं, और उसका मुंह बिल्कुल ठीक था, उसका जबड़ा बिल्कुल ठीक था, ऐसे नहीं होता ऐसा मतलब। नहीं। इट डज नॉट अलाइन, मतलब कोई बेवकूफ बनाए तो बना ले, मतलब इट डज नॉट अलाइन, आई फेस विल नॉट। वेरी मच लाइक जो हमने फोटो देखा उसमें तो उनका फेस में कहीं कुछ कुछ भी ऐसा नहीं दिखने में आया था। ये इतना बिल्कुल हट्टा सही। कट्टा आदमी क्या यू कैन बात नॉट। करते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल तो सही। वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो जी। मरने वालों में नहीं है, डिप्रेस होगा वो, पर वो मरने वालों में हाँ, देयर वाज सम नेम जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उनका नेम भी आ रहा है इसमें पूरी बातों में। अब वो जो साइकाइट्रिस्ट है, उस होगा, उसके पास वो जाता होगा, अब ये भी नहीं मालूम है कि वो प्लांट किया गया है, क्या किया है, क्योंकि देखो ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन है। वी ऑल आर हैविंग right now and we are all are having a lot of stories right now. What is the truth? It is the team of a police. Agar if I am there, they ask me to do it, then I'll ask. देन यू कैन Then डू I will इट। do the interview. But then या they don't ask criminal psychologists to do that, right? That's the problem in India. दैट्स प्रॉब्लम एक्चुअली स्पीकिंग द इनको पीपल ये एक्चुअली हमें रियली। पूछने चाहिए सवाल, यस but यस कोई यस और यस यस। पूछता है। कोई और पूछता है who have no knowledge and probably they are being misguided or some or the other things और इसीलिए तो आप कुछ देखिए कि नहीं। पब्लिक ह्यू एंड क्राई के लॉ आ रहे हैं, जबकि वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट खड़े हुए लॉ होने चाहिए, जिसने इनमेट्स को इंटरव्यू किया हो और उनसे पूछा हो कि क्या हालातों में तुमने किया और क्यों किया, और उससे एक रिसर्च निकले, उस रिसर्च को ये लोग ले और उसके ऊपर नहीं ये और लॉ उसके ऊपर ये लोग काम कर। हाँ बिल्कुल सही बात है। यू आर वेरी करेक्ट एंड दिस शुड बी टेकन वेरी बनाए। सीरियसली। कौन है पार्लियामेंट में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को बैठा, कोई है नो जो नोबडी क्राइम इज देयर। करता हो? कौन देख रहा है? आप लॉ बनाने के टाइम पे हमसे पूछते हो क्राइम से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड, वुमेन्स एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए जब आप बात करते हो, आप हमसे पूछते हो, तो फिंगर नॉट है। तो मैंने ठीक है, तो अपनी अपनी वही है, तो इसलिए तब तक चीजें भुगतती चली जा रही हैं, तो लड़कियां और ये ऐसे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। अच्छा, और ये जो सुशांत जी की फैमिली की तरफ से अगर इस तरह का कुछ जाता है तो आई थिंक उससे भी शायद इस पूरी बात को ज़्यादा जो है ठोस रूप से पहुंच पाएगी या कॉन्क्रीट हो पाएगी अगर नहीं, उनकी लोग फैमिली यही इस रहे, तरह की। जी हाँ। वो तो खुद ही कहते हैं कि सीबीआई की जांच करो। जी हाँ, जी हाँ, they are for it and public is also with them. So I think now Mumbai, this is high time they should really take it seriously and कुछ इनको उसके प्रति कदम उठाना चाहिए अगर कुछ अदर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा है उन लोगों पर तो we cannot comment upon it but it's really a very प्रॉपर sensitive। प्रेस में बात करें, जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको इजाजत दी है, सारे क्वेश्चन या के आंसर तरीके से बिना इरिटेट हुए हमें जवाब दे, समझ बिल्कुल आएंगे। आपने क्या सही। इन्वेस्टिगेशन किया, आप उसको प्रॉपर तरीके से बताओ। मां अच्छा, वो और ये छुपाने भी वाली, सुना है चार्जशीट की कॉपी भी कहीं कुछ दूसरे लॉयर्स तक नहीं पहुंची है ऐसा भी कुछ है। Just a point. I mean, I received this also. देयर आर That is थिंग्स, not. यस देयर आर मेनी थिंग्स, वो ऐसे ही नहीं आ रहे, जहां पर आग लगी है तो धुआं है ना। अब जी हाँ, धुआं की जी बात हाँ। वहां करेगी नहीं, आज दोनों चीजों में ही चीजें आती हैं सामने, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर, समथिंग इज Yeah, क्रिएटेड of course, एंड of course.
और ये आज की बात नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया गया है। People are also, जी हाँ, and people are also linking it with some other suicide of his friends who died simultaneously, जो deaths हुई हैं उन्हीं के या friend circle में, जो कि यस दिशा यस, सल्यान करके उनकी जो हाँ, ex, उसकी जो मैनेजर का था उसको भी हाँ, फेंका वो भी गया। कि suicide, उसको you never हाँ, know कि what it- कितना आपने सीन रिक्रिएट किया, कोई काम करना नहीं चाहता है। वो कहते हैं हमारे पास इतने खुद ही हर रोज में इतनी कोविड के अंदर डेथ्स हो रही हैं, और कितना कौन करेगा, और इतना काम वर्क पुलिस कहते हैं कि हमारे पास खुद होता है। आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन के साथ लगे रहते हैं। पुलिस की वैल्यू है क्या? पुलिस की वैल्यू तो जी कुछ रखी नहीं है। पुलिस सिर्फ ऊपर का दबाव लेती रहती है। अगर वो किसी को पकड़ लेती है तो उसको छोड़ देते हैं। आप कोई एक आध केस हाईलाइट हो जाए तो फिर वहां पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तरीके से, वहां सीएम भी चालू हो जाता है। बट एक्चुअली तो कुछ भी नहीं। हम कब तक सारी मीडिया इन चीजों को उठाती रहेगी, आप और मैं बात करेंगे और हर एक केस को, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, कितनी बातों वही जी कहते हैं कि तो ऐसे जो सामने नहीं आते बच्चियों को कितना का मर्डर हुआ, दफन हुई पड़ी हुई है नीचे, उसको हाँ, कौन ये देख तो रहा खैर पब्लिक में, जी हाँ, and since he was a public figure and then people were, his है? fans and followers and lot of people used to love him, so that's why सही बात है कि इतना बात सामने भी आ रही है और हम आज बात भी कर पा रहे हैं। बाकी कई ऐसे केसेस होंगे जहाँ बात तक नहीं होती है और शायद पता तो लगना बहुत आगे की बात है। बिल्कुल सही बोला अनुजा जी आपने, और बहुत सारे बातें आपने बताई हैं जो कि रियली डिप्रेशन से रिलेटेड भी आपने काफ़ी जानकारी दी है, जो कि सबके लिए आई थिंक सारे ऑडियंसेस व्यूअर्स जो हमारे अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे कि कितनी सारे तरीके की डिप्रेशंस भी हैं और उनकी क्या-क्या एक्चुअली में इंटरनली और मेंटली वो आपको परेशान कर सकते हैं और हाउ टू एड्रेस देम एक्चुअली। So we need really professional people like you are there and other psychologists who really understand the criminal psychology, and you are also a victimologist, and वो भी एक अपने आप में बहुत ही वाइड फील्ड है जिसको कि समझने में शायद हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा व्हाट एग्जैक्टली इट रियली कंसिस्ट्स ऑफ। सो डेफिनेटली अनुजा जी, एंड वी रियली होप दैट इस तरह के हम लोग जो ये बातें करते हैं और हम प्लेटफॉर्म के जरिए अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि डू समथिंग, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एक्चुअली दे शुड रियली सीरियसली लुक इनटू द मैटर कि उनको कुछ एक्टिवेट करवाना चाहिए और पुलिस के थ्रू, और देन अगर नहीं हो रहा है पुलिस से तो दे शुड गिव इट टू सीबीआई, देन लेट द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। सो Yeah, there something should like not be any yeah delay which is like जैसिका जी केस में हुआ है था और बहुत लोगों के that. केसेस में स्टेट yeah सीआईडी को देते हैं, हाँ बिकॉज मेरी केस है। मैंने स्टेट सीआईडी को, मैं सीबीआई पे विश्वास नहीं करती थी, तो मैंने okay जस्ट आई हैव गिवन अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पॉक्सो केस। स्टेट सीआईडी okay आपका महाराष्ट्र का ही केस है, पुणे का, और लोखंडवाला और उससे अच्छा रिलेटेड चीजें में था, और पुणे में विमानतल और चंद्रावल के पुलिस थाने का केस है। बहुत बड़ा केस था अच्छा वो। और okay उसमें मैंने बोल दिया था कि मैं विश्वास नहीं करती सीबीआई को, और एसआईटी भी नहीं बैठेगी, तो स्टेट okay सीआईडी। So let these people come up and let's talk this thing can be talked about. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोर्ट के अंदर भी क्योंकि पब्लिक प्रॉपरली आ नहीं जा पा रही है, तो प्रॉपर तरीके से हम उसको फ्रेम भी नहीं कर पा रहे हैं। जी तो हाँ, वीआई के हिसाब अभी ये से चल, लॉकडाउन, जी हाँ बिल्कुल तो वो भी देखो लॉकडाउन के अंदर मारना वाज अ गुड स्ट्रैटेजी। यस, बिकॉज एंड वी बिलीव दैट कुछ सीसीटीवी कैमरास के साथ में भी शायद कहीं कुछ हाँ हुआ है, बात, इट्स ओके, तो शायद मुझे वो पता ऑफिस मिले हैं उसमें, है, देयर इज नो, वी डोंट नो बिकॉज़ वी आर सिटिंग हियर, वी कैन नॉट से ये मैं एनीथिंग, तो बट कहीं सवाल है, कुछ आपकी डिमांड कर रहे हैं सवालों के, वो सवालों के जवाब दे रहे हैं हमें। मैंने जो सही बात सवालों के जवाब आप दे दीजिए, आप मुझे तरीके से बिना इरिटेट हुए, बिना चीखे चिल्लाए आप दे दीजिए हमें सवालों के जवाब। ठीक है, क्योंकि दिस इज व्हाट पुलिस भाग जाती है, जवाब नहीं देती, है। उनके पास होते नहीं। तो आप क्या है, अब दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट, बट दिस इज व्हाट आई फील दिस इज अबाउट। No, no, this is a strong message what you have given, and there are many things which we have understood also, जो जितना आपने बहुत अच्छे से explain भी किया है बातों को, जो हम normal जो layman है जिनको जितना legal aspects नहीं पता है उनको भी नई कुछ बातें ऐसी पता चली हैं जो कि जब भी कुछ इस तरह की अगर डिमांड भी करती है पब्लिक तो वो भी राइटफुली करेंगे, बिकॉज नाउ दे नो मोर अबाउट इट कि क्या एस्पेक्ट्स और भी हैं जो कि लीगली भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। So Anuja ji, thank you so much for this support, and we really look forward to your help also in this particular case. And thank you for taking out time, especially for that, because there is so much so going on otherwise also You in your can lives. always pass forward me with this petition, definitely I can put it in court.
Definitely, and we wish all the people who are working towards this justice for Sushant Singh Rajput and asking for CBI, and now we are seeing that even we can ask for more. So, apart from CBI, so we all are hoping for the best, and all our condolences and संवेदनाएं हमारी उनकी फैमिली और फ्रेंड्स और फैंस के साथ में है. सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनुजा जी, और इसको सही में नेशनल उसके हिसाब से भी आई थिंक गवर्नमेंट को, सीएम को, और इवन नॉट जस्ट बिहार बट ऑल ओवर इंडिया इसको टेकअप करना चाहिए, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू यंगस्टर्स अदरवाइज ऑल्सो जो बॉलीवुड में नए आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में. नेपोटिज्म अपनी जगह वो तो हर इंडस्ट्री में है, उसको भी हम मान ही रहे हैं, बट एक ये जो नए टैलेंट को मारने वाली जो बात है, इट्स लाइक किलिंग यंग टैलेंट्स जनरली, मतलब इवन इफ बाय नेपोटिज्म मीटू मूवमेंट आया था तो भी इंडिया से चालू हुआ था. तो जी मीटू मूवमेंट जैसे इंडिया से बाहर चालू हुआ था, वैसे ही अब इसके लिए भी जरूरी है कि कोई ने, और यहाँ पे नेपोटिज्म बोल रहे चालू. हैं लोग, इवन इनके बॉलीवुड से भी लोग आकर के अब बोल तो रहे हैं, बट बहुत सारे लोग अभी भी चुप हैं, और probably they are seeking their own career or their aspirations और जो भी उनका होगा understanding, but yes some of them have really come out and spoken very outrightly also. तो अच्छा है, Yeah, and we I are just also getting to know as audiences that that's what is going on, and that has been going on actually over so many years, like you know for you're just talking about nepotism in Bollywood. Today in the morning, I just said nepotism is not in the nepotism. क्या है आपसे बड़ा I हमारी read about इंडस्ट्री मेरे it. एडवोकेसी में है. जी आपके हाँ. आप जिस जगह पे काम करते हैं, बच्चों के स्कूलों में आप कहाँ नहीं देखते. बट इज कॉल्ड नेपोटिज्म इज बुलिंग. या कौन सी फील्ड में नहीं है नेपोटिज्म? इट्स कौन सी फील्ड एवरीवेयर, में नहीं है नेपोटिज्म? आप मुझे बताओ ना, नेपोटिज्म कौन सी फील्ड में नहीं है? सभी जगह अब है, we have to इसको भी find. नेपोटिज्म को, मैं चाहे आप जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हो, हर जगह पे हम लोगों ने बर्दाश्त किया है. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हमें काम ही नहीं करना. बट अनुजा जी, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ये भी था, आई एम जस्ट थोड़ा डेविएट हो रहा है इस टॉपिक से, बट नेपोटिज्म का जहाँ तक हम बात करते हैं, पर जो जितनी भी दूसरी फील्ड्स हैं, अगर आप कॉर्पोरेट्स की बात करें या फिर आप ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें ना, so there are certain policies which are there and they can support, but here in Bollywood this is so disorganized kind of a place where anybody can do anything, anybody can threaten you. बच्चों So के there is स्कूल no. में एडमिशन करवा लो. जी हाँ, जी हाँ. आपका 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 अल्मा माटा ही आएगा. स्कूलों के करवाओ, स्कूलों में एडमिशन जाओ. अगर आपका बच्चा उसमें हो जाए तो बता देना. बिल्कुल तो बिल्कुल. It's like, बहुत मुश्किल है यार. नेपोटिज्म क्या सिर्फ बॉलीवुड को हम लोग बात कर रहे हैं. नेपोटिज्म बहुत बात सही बात है, सही है. बात जिसका है. आंकड़ा चल रहा है सब चला रहे हैं. पॉलिटिशियंस में नेपोटिज्म नहीं. Everywhere is going on, and then we have to find our own way out of everything, and then मैं system बस should इतना कह रही support हूँ, right अपना thing. दिमाग बॉक्स के अंदर मत डालो. जब जी भी बात करो, खुलकर बात करो और बाहर निकल कर बात करो. बहुत कुछ जी. सीखेगा. दैट इज No, thank you, Anuja ji, and it was so lovely talking to you over here on this platform of ours, Nation Talks, and this is designed mainly to discuss all the issues which are related to national interest, and this was one of them, which is very sensitive and very close to all of us. So thank you for taking out time once again, and thank you so much for joining me. I look forward to your support more for justice for Sushant Singh Rajput. Thank you so much. थैंक Thank यू you, सो Anuja. मच अमिता जी, आपने बुलाया इतने. और मेरे तो ऑडियंस है जिनका प्यार, मैं गदगद हो जाती हूँ. आई गेट सो ओवरवेल्म्ड. आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, और अगर आप लोग ही नहीं डिमांड करेंगे तो सप्लाई नहीं होगी. तो आप लोगों की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चलती रहे. आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसे उलटता रहे, और मैं ऐसे ही खूब जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आती रहूं. और आप तो जानती होंगी समिता जी के बारे में, तो चीज है सच ए गुड एंकर इन अ होस्ट. तो जिस तरीके से वो बात कर रही है और सुन रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ खुद एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और हर एक में यही खूबसूरत इंसान छुपा है. जब उसे ढूंढने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है. भूखे हम सारे हैं प्यार के, और जरा सा प्यार और एक हाथ ही मिल जाए. शायद बहुत बड़ी एडवाइस की जरूरत कभी कभार नहीं होती है. शायद कभी कभार एक फोन करके सिर्फ हाँ हाँ करके सुनने की ही जरूरत होती है. शायद कभी हम किसी के लिए बहुत कुछ ना कर पाएंगे, पर इतना सा भी अगर हम खड़े हो जाएं साथ में. खड़े का मतलब है कि एक हाथ पकड़ के कह दे यार तेरे को लगे रोना, तो मेरे पास मुझे सिर्फ सुना दियो, मैं सुन लूंगा. पर इतना ही बहुत होता है कभी कभार किसी को. तो
बहुत अच्छा आप लोगों ने इस टॉपिक को उठाया और आप लोग बस इसी तरह से मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, मुझे प्यार करते रहें और इनके चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर। Thank you for all your kind words and all your support and blessings, and we are always there anytime. Thank you so much. Have a wonderful evening and great week ahead. Thank you, Pooja ji. Thank you. So, everyone, that was Anuja Kapoor ji. She joined us to discuss more about Sushant Singh Rajput and the sensitive case which is going on. And we, as public, are demanding for CBI investigation, which she said can be done if we are there and if there is support from, definitely from the government and political side as well. So ये एक अपील है हमारी सरकार को भी, जो सीएम है मुंबई के, उनको भी, उसके साथ में जितने भी लोग हैं, मुंबई पुलिस है, और अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ गिव इट टू सीबीआई or CID, somebody, because we all want justice for Sushant Singh Rajput, and we all are, smelling that there is something more to it than it can't be a suicide by him. So I'm just ending this thing over here today and on this note. Thank you for joining me and watching us.